عمران خان سے ملاقات کا دن ہے. حکومت کی جانب سے یہ ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی, لیکن تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ حساب چکتا کیا جائے گا. جو پچھلے منگل کو عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کیا گیا, اس کے بعد توقع ہے کہ تحریک انصاف کے ورکرز کی تعداد زیادہ ہوگی. پنجاب نے بڑا واضح اعلان کیا ہے, علی حمزہ صاحبہ نے, معین قریشی صاحب نے, کہ پنجاب کی تنظیم تو وہاں پر جائے گی. البتہ دیکھنا ہوگا کہ کل کے پی کے کتنے ایم پی ایس جو ہیں وہ کتنی تعداد میں جو ہے وہ وہاں پر آتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ پچھلی بار بھی جب اینڈ میں حملہ ہوا عمران خان کی بہنوں پر, تو اس وقت کے پی کے جو مین لوگ تھے وہ زیادہ تعداد میں موجود تھے. پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ آ کر حاضری لگوا کر اور اس وقت تک جا چکے تھے. علیمہ خانم, اور پھر آپ نے ایک اور چیز دیکھی کہ عمران خان صاحب کی ایک جو تصویر ہے اس کے اوپر بڑا رولا پڑا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کی ایک جو تصویر ہے, اس تصویر کے اوپر اس وقت مطلب ہزاروں ٹویٹس ہو چکے ہیں, اور ولاگز میں بات ہو رہی ہے, ہر جگہ بات ہو رہی ہے, تصویر اصلی ہے, جعلی ہے, کہاں کی ہے, کب کی ہے, کیسے ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تصویر, اور آج تک عمران خان صاحب کی اس تصویر صرف ایک بار آنے دی گئی ہے, اور وہ ہے جب عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے, وہاں سے ایک تصویر آئی تھی, اور اس تصویر نے بھی سوشل میڈیا پر ایک بڑی ہلچل مچا دی تھی, اور کتنی وہ ڈسکس ہوئی, اور کیا کچھ ہوا اس کے بعد, کتنے لوگ سپریم کورٹ کے اندر سے فارغ کر دیے گئے, اور بہت کچھ ہوا تھا. تو اس کے بعد سے اب تک عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پہ کہیں پیش نہیں کیا جاتا, عدالت میں کہیں پیش نہیں کیا جاتا. جو لوگ, ہاں ایک تصویر اور آئی تھی جو اڈیالہ کے اندر کی آئی تھی, اور پھر وہ جو سماعت کے دوران کی آئی تھی. اب جو جاتے ہیں ان کی اتنی تلاشی لی جاتی ہے کہ کوئی کسی طرح سے کوئی ایسا, وہ جو آج کل تو پین بھی ہے نا جن کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے, تو کوئی ایسی ڈیوائس اندر نہ جائے جس سے عمران خان کی تصویر نہ آ جائے. اتنا خوف ہے اس نظام کو کہ عمران خان کی تصویر نہ آ جائے, عمران خان کا پیغام نہ آ جائے. بہت خوف زدہ ہے یہ نظام عمران خان سے, اور عمران خان جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ سرنڈر نہیں کر رہے. تو علیمہ خانم صاحبہ کی گفتگو میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ کل وہ جائیں گی, اور کوئی خوف نہیں ہے جو ان کی بہنوں کے ساتھ. مطلب دیکھیں نا کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ یہ اعصاب کی جنگ ہے, اور اعصاب کی جنگ عمران خان جیت چکے ہیں, ان کی بہنیں بھی جیت رہی ہیں, ان کے ورکرز بھی جیت رہے ہیں. ہاں ان کی پارٹی کو تھوڑا سا منظم ہونے کی ضرورت ہے, ان کو تھوڑا سا ایک میکنزم بنانے کی ضرورت ہے, ورنہ ان کی بہنیں پچھلے منگل کو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا. اب آپ علیمہ خانم صاحبہ کی گفتگو سنیں, اس میں کچھ عام پوائنٹس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. ان کی آواز میں کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ ڈر گئی ہیں. پہلے ذرا سنیں, انہوں نے جج کے حوالے سے اور جو جھوٹے گواہ پیش کیا کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات کی ہے. پھر ہم کچھ پوائنٹس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں جو آج میں دیکھ رہی تھی, جو بیچارہ پولیس والے ان کے گواہ جو ہوتے ہیں وہ سپاہی ہوتے ہیں. تو آج میں نے جج صاحب کو کہا, جج صاحب یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو جھوٹی گواہی دے قرآن کا نام لے کے, کیونکہ آپ دین سے بھی جاتے ہیں, آپ اپنے قانون اور آئین کے دائرے سے بھی جاتے ہیں گواہی کے لحاظ سے. تو میں نے کہا جج صاحب صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو تو سزا ملے گی, یہ تو قربانی کے بکرے ہیں سارے بیچارے, سپاہی ہیں, اوپر سے آرڈر آتا ہے. اصل سزا ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو ان لوگوں سے جھوٹی گواہیاں کہلوا رہے ہیں. وہ کیوں اس سے آزاد ہوں اس بات سے کہ آپ یہ بیچارے غریب سپاہیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں, ان سے رٹوا کے بھیج دیتے ہیں. اب وہ بیچارہ بھی کیا کرے, وہ اپنی نوکری بچا رہا ہوگا, تو ان کو تو سزا ملے گی, لیکن یہ تو قربانی کے لیے ہے. تو جو انہوں نے باقی فیصل نے بات کی کہ یہ جو گواہ ہوتے ہیں یہ میٹنگوں میں گھس جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے سن لیتے ہیں. مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے. میرے اوپر تو انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کا پیغام لا کر آپ نے لوگوں کو دیا, اور وہ جو پیغام تھا عمران کا ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوتا ہے. ہمیشہ عمران خان تو تحریک انصاف بنائی اس لیے تھی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. ان کی ساری جنگ ہی آئین, قانون اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے. 2.5 سال سے عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں آئین, قانون اور جمہوریت کے لیے. یہ تو سارے پاکستان کو رٹ گیا ہے کہ عمران خان جیل میں ڈیل کر کے نکل سکتے تھے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. جو 3 چیزیں جس پہ عمران خان بالکل بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے اور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, وہ آئین ہے, آئین کی بالادستی, رول آف لا. وہ کہہ رہے ہیں 26ویں 27ویں ترمیمیں جو آپ نے کی ہیں یہ غیر آئینی ہے, یہ دنیا میں ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ ایک عدالت کو آپ ایک وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دو. تیسری چیز فری اینڈ فیئر الیکشنز. ان میں سے کون سی چیز ہے جس پہ عمران خان کمپرومائز کریں؟ اور کیونکہ وہ ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, جو سارے پاکستان میں اس وقت آپ کیسز دیکھ رہے ہیں, اور جو عمران خان باری باری کہتے ہیں کہ اخلاقیات ایک اہم ستون ہے جس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے, جس کے اوپر آئین کھڑا ہوتا ہے. اخلاقیات کا جنازہ تو روز آپ عدالتوں میں نکال رہے ہیں, اخلاقیات ہی ہیں. آپ اپنے دین کا ساتھ بھی
जो कहते हैं ना कि ब्लास्फेमी लॉ के नीचे आप नाउजुबिल्लाह कुरान का पेज अगर आप फाड़ दो तो सजा है, लेकिन जब कुरान पे आप अहद करके गवाही देते हो दुनिया में, अगर आप गलत गवाही दो दुनिया में, वो भी बाइबल पे हाथ रखते हैं, तोरा पे हाथ रखते हैं, कुरान पे हाथ रखते हैं, अगर इनके ऊपर आप हाथ रख के गलत गवाही दो तो सजा है, सजा है। जज साहब का काम बनता है कि इनसे पूछें कि तुम क्या अहमकाना गवाहियां दे रहे हो। जज साहब जब चुप बैठे रहेंगे, और उनको भी पता है और सारे पाकिस्तान को पता है कि झूठी गवाहियां हैं, तो जज साहब अपनी कुर्सी का वो भरम नहीं रखते। सीधी सी बात है, ये कुर्सी एक जज की नहीं है, ये एक इंसाफ की कुर्सी है। इसके ऊपर अगर आप इसका बोझ नहीं उठा सकते, लोगों को इससे हट जाना चाहिए, क्योंकि इसकी सजा कई दफा हम देख चुके हैं कि दीन में भी आता है कि जो काजी की सजा है दोज़ख में उस सबसे बदतर होगी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। यही हम कह सकते हैं। बाकी आपको पता है, सारों को पता है कि कानून का जनाजा रोज आजकल निकल रहा है अदालतों में, किसी की जरूरत नहीं है कुछ करने की, बेबसी का आलम है, फिक्र ना करें, इसी खंडर में से पाकिस्तान आज़ाद होगा इंशाल्लाह। इसी खंडर में से नई इमारतें खड़ी होंगी, इंसाफ की इमारतें, जमहूरियत की इमारतें, ये सारा कुछ ज़रूरी होता है। इंसानी हकूक, अदालतें काम करेंगी, इंसानी हकूक भी मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसी में से इमरान खान इसी उम्मीद में बैठे हैं कि जब ये सब ज़मीन बोस हो जाएगा, इसमें से नई इमारतें खड़ी होंगी। देखें, बात यह है कि आगे मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन इन्होंने बड़ी अहम बात की है जिस पे कोई भी बात नहीं करता, कि ये जो गवाह हैं जो झूठी गवाहियाँ देते हैं कुरान मजीद पे हाथ रख के, इन लोगों को शर्म, गैरत और हया नहीं आती, इनके अंदर इंसानियत नहीं है। ये कितने बेहस, और मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। इससे पहले आपने देखा था डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जब एक बार कहा कि इसको वो कुरान मजीद की वो आयत का मफहूम सुनाया, झूठी गवाही देने वाले के साथ क्या होगा, तो एक गवाह जो है वो गवाही देने से इनकार कर दिया था, वो चला गया था वहाँ से। तो कोई इनके अंदर मतलब कोई गुनहगार से गुनहगार मुसलमान भी हो, उसको भी आप कहें ना कि भाई कुरान मजीद पे हाथ रखो, तो वो भी कुरान मजीद पे झूठा हाथ नहीं रखेगा। उसके अंदर अगर मतलब जितना भी गुनहगार मुसलमान हो, अगर वो खुद को मुसलमान समझता है, गुनहगार हो लेकिन मुसलमान समझे। ये लोग अदालतों के अंदर जज हलफ लेकर बैठे हैं, जज अमजद शाह जो है ये हलफ लेकर बैठा हुआ है कुरान मजीद के ऊपर कि मैं इंसाफ करूंगा। जो उसके सामने पुलिस वाले पेश हो रहे हैं, उनकी जिनकी ये बात करें, कुरान मजीद पे हलफ उठा के गवाही दे रहे हैं। जज को भी पता है ये झूठ बोल रहे हैं, गवाह को भी पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, और हुकूमत को भी पता है ये झूठ है, लेकिन चली जा रहा है। मतलब कोई अल्लाह का खौफ नहीं है लोगों के अंदर। और वैसे हो भी कैसे सकता है, ये तो वो निज़ाम है जहाँ पे जस्टिस याहिया खान, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की अब दूसरी बड़ी अदालत, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत आईन अदालत है, वहाँ हलफ लेके हाजी अमीनुद्दीन बैठे हैं। एक और अदालत में जस्टिस डोगर हलफ लेकर बैठे हुए हैं, एक में अली नीलम हलफ लेकर बैठी हुई है। तो ये मखसूस नशिस्तों वाले ने जो हलफ लेके फैसला किया है जजेस ने, वो आपके सामने है। तो बड़ा ये अफसोसनाक और शर्मनाक है। और जिस तरह से ये दीनी रवायात, दीनी तालीमात की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो इनको इनके अंदर कोई खौफ नहीं है, कोई अल्लाह ताला का इनके अंदर खौफ नहीं है। पता नहीं किस तरफ ये मुल्क को जो है वो लेकर जा रहे हैं। ये तो वो हैं जिन्होंने अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर हलफ उठाया असम्बली में कि हम जीत के आए, हालांकि हारे हुए थे। तो अभी ज़रा अलीमा खानम साहिबा ने कल के हवाले से, मंगल के हवाले से क्या बात की है वो सुनिए। देखिए, हमारा एक दिन है मुलाकात का, अब वो मंगल का दिन है, और हम हर मंगल अपने आइन और कानून के अंदर रह के हम आ जाएंगे, वो हमारा मुलाकात का दिन है। अब मसला ये हो गया कि हम कानून के जो कानून तोड़ रहे हैं वो कानून के मुहाफिज तोड़ रहे हैं, सबको पता है, सारे पाकिस्तान को पता है, उनकी कोई सजा नहीं। और जो कानून के ऊपर चल रहे हैं उनको सजाएं दे रहे हैं। लेकिन हम इमरान खान के को मुलाकात के लिए अपना जो हमारा कानूनी हक है वो उसके लिए जाएंगे मंगल के रोज। हम आपको पता है कि पिछले 10 महीने से वहाँ बैठ जाते हैं, क्योंकि इजाजत नहीं देते, बैठेंगे नहीं, हम उठेंगे नहीं वहाँ से। वाज़े उन्होंने कर दिया है कि हम जाके बैठेंगी और उठेंगी नहीं जब तक जो है वो मुलाकात हो नहीं जाती। तो कल लगता है कि चीज़ें फिर काफ़ी वहाँ पे तलखी वाली होंगी। बहुत बड़ी तादाद में कारकुन रहे, शाम को भी रहे, रात को भी रहे, लेकिन जब उस वक्त ऑपरेशन स्टार्ट होता है आपको तो तनहा छोड़ दिया गया। आपके साथ ख्वातीन जो अभी दाएं बाएं खड़ी है, कुछ खुला है, कुछ 50 लोग थे, बाकी आपको छोड़ के चले गए, वो क्यों हुआ ऐसा? क्या पार्टी ने जानबूझ के ऐसा किया? नहीं, आपका ये काम है। नहीं, मैं आपको बात, मैं विटनेस था, मेरी बात विटनेस था। हम अगर अकेले नहीं बैठे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अकेले नहीं बैठे, हम तो किसी को कहते नहीं जा रहे, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हम बल्कि हम जब वो वाटर कैनन चला रहे थे तो उस वक्त सेनेटर मुश्ताक हमारे साथ खड़े थे, और वो गजा के अंदर जो उनके साथ हुआ था वो उसके बारे में हमें बता रहे थे। तो जब वाटर कैनन चला, मैंने सारों को कहा तो खड़े क्यों, भागो यहाँ से। वो देखो उन्होंने वाटर कैनन चला दिया, वो हिले कोई ना,
मैं उनको जाओ यहाँ से, वो हिलते नहीं, तो बल्कि हमारे लिए ज्यादा परेशानी औरों की हो जाती है। दूसरा तो आप देती नहीं है कारकुनों को। नहीं, जब पानी लग गया था, जब पानी है तो पानी, हमारे पास 3 बात आती हुई थी, तो मैंने उनको कहा पानी है, क्या हो गया? वो असल में पानी से ज्यादा उसकी गिरफ्तार थी, उससे प्रेशर से मेरी बहनें दोनों जख्मी हुई। वो उठने की कोशिश की तो वो एम करके उनको मार रहे थे, कहती एक दफा उठने की कोशिश की, टारगेट किया उन्हें, दूसरी दफा गिरी है, तीसरी दफा गिरी है। फिर हमें पता ही नहीं था, अगले दिन पता चला वो एजाज थे। तो हम देख रहे थे कि पानी के आगे हम हैरान होकर देखें कि हमारे से तो खड़ा क्यों आ जा रहा है पानी में, तो ये कैसे खड़ा है आगे एजाज। तो अगले दिन पता चला वो एजाज था, वो उसने पानी के आगे खड़ा हुआ है, तो मेरी बहनों में से प्रेशर हटाया है, तो फिर वो खड़ी नहीं है। शायद खटक ने उनको बचाने की कोशिश की, तो वो कीचड़ हो चुका था, वो गिरा है और वो उसकी नहीं पर जोता गिरे, मतलब जख्मी हुआ बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, आप देख लेना, ये लोग आपको कल फिर सारे नजर आएंगे। देखें, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि असाब की जंग है, वो वाज़े कह रही हैं कि जो लोग जख्मी हुए वो भी कल सारे आपको वहाँ पे नजर आएंगे, सब लोग वहाँ पर आएंगे। और फिर उन्होंने जिस तरह से बात की कि बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ। और देखिए, लेकिन एक बात बहुत तकलीफ दे है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, सबको पता है कि वो नाहक कैद हैं, सबको पता है कि उनके ऊपर झूठे केसेस हैं, और उनकी बहनें जिनकी एज उम्रें जो है वो 70 के करीब है, तकरीबन 70 साल के करीब हैं, उन बहनों के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, क्या इमरान खान की बहनें और इमरान खान ये सलूक डिज़र्व करते हैं? ये उनके साथ होना चाहिए? इमरान खान जिन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया, उनकी बहनें जिनका हक है कि वो अपने भाई से मिले, उनके साथ ये सलूक होना चाहिए। ये बहुत ही तकलीफ दे जो है वो बहरहाल सूरत हाल है। लेकिन अब सारी जिम्मेदारी उन्होंने महमूद खान ने तकलीफ और नाम राजा हासिल अब्बास को दी है, वो भी पीटीआई अपने दिल से भी कर रही है। जो मुलाकात का प्रोसेस कह रहे हैं महमूद खान चंद्रजी पर पार्टी के साथ एंगेज हो रहे हैं, दायरे मकसद ये है कि खान या तो भाई के या इसमें ये जो प्रोसेस है ये मुतासर होने का खदशा है, क्योंकि पीटीआई के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि जो अडियाला जेल के बाहर बजने लगते हैं, इससे जो है वो प्रोसेस मुतासर होने का खदशा है। हम तो अपनी मुलाकात के लिए जा रहे हैं, क्या मुलाकात तो नहीं बंद करेंगे, हम तो मुलाकात के लिए जाएंगे, हम मुलाकात के लिए जा रहे हैं। आप अगर मुलाकात ना होने दें और इतनी मेहनत करें कि ये ना मिले, फैमिली ना मिले, इमरान खान को कैद तन्हाई में डालें, हमें कबूल नहीं है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला जाए। एक तस्वीर निकली है, पहले मैंने भी उस तस्वीर को देखा, मैंने कहा ये तस्वीर आजकल AI में बहुत तस्वीरें निकल आती हैं, लेकिन जब मैंने उसको गौर से देखा, मैंने भी किसी को भेजी, मैंने कहा आप लोग कोई चेक करवा सकते हैं कि ये AI है, क्योंकि ये लग इमरान खान ही लग रहे हैं। अब मुझे यकीन है वो तस्वीर इमरान खान की है, वो इसी तरह ही है, ये उनकी नॉर्मल, क्योंकि लग वही रहे हैं, लेकिन अभी की नहीं होगी, कोई कम से कम नहीं कैद तन्हाई नहीं, कैद तन्हाई से पहले, क्योंकि उनको बहुत पसीना आया हुआ उस तस्वीर में, और ये कैद तन्हाई से पहले की होगी। लेकिन वो तस्वीर अगर आप देखें वो गर्मियों की लग रही है, क्योंकि वो सर्दियों की नहीं लग रही, नहीं टी-शर्ट पहन, बस वो आपने उसको बहुत करीब से जाके देखा है, वो इसी तरह ही होते हैं इमरान खान को। फिर हमने चेक किया, हाँ ये जूते तो मैंने पहचान थी, किसी ने कहा एक जूते पहन कर आते हैं, मेरा मैं असली है, वो असली है, वो जो फोटो याद है ना, उन्होंने हमने देखा तो नहीं, लेकिन उन्होंने कितना कहा जारी करवाई गई है, पता नहीं जारी किया है या जारी की होगी, अच्छा जारी किया है, हमने तो देख लिया ना, लेकिन ये अभी की नहीं है, क्योंकि जब पसीना आया वो सर्दियों की नहीं लग पटियाला जेल में ऐसी छत कोई है ही नहीं जिसके ऊपर ये जाके छत लगे। हाँ ये छत की तस्वीर सामने जाली लगी हुई है, तो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है। ऐसा नहीं है, जेल में तो जाली होगी, लेकिन है इमरान खान। मुझे तो लग रहा था, हमें भी लग रहा है कि मैंने लोगों से पूछा कि आप बताएं कि चेक करवा देगा किसी से, आप ही चेक करवाएं कि वो आप चेक करवाएं, क्योंकि उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जब कभी उनके परवरिश के लिए बाहर लेकर जाते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे, तो वहाँ पे एक शहर के अंदर दरवाजा खोला हुआ है, उस शहर में मैं प्रवेश कर सकता हूँ, मैं भाग लेता हूँ और फिर अंदर लाते हैं। तो मैं यही सोची थी ऐसा कोई शहर होगा, मैं चाहूँगी कि आप तस्वीरें जारी होने से भी आपको वाक़ा होगा कि लोग नहीं तस्वीर आपकी नहीं। देखिए इमरान खान वर्जिश करते हैं, जब इनको बंद भी कर देते हैं, इमरान खान आपको पता है कि सेल के अंदर भी वर्जिश कर लेते हैं, वर्जिश कभी नहीं छोड़ते। कई जज साहब आते हैं सुबह को, उनको पता होता है कि इमरान खान आएंगे 11 बजे तक, क्योंकि पहले वो वर्जिश करेंगे फिर नहा कर आएंगे। इमरान खान वर्जिश ही चीज़ है जो हमेशा कहते हैं कि हर इंसान में अगर सेहतमंद रहना है, मेंटली भी स्ट्रांग रहना है, 2 चीज़ों का ना कभी छोड़ो, एक वर्जिश को और एक अल्लाह को, 2 चीज़ें जोड़ लोगे आप ठीक रहोगे। तो इमरान खान को जितना इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, ये आम आदमी के पास की बात नहीं है। किसी से पूछे कैद तन्हाई का, इंटरनेशनल लॉ कहता है कि आप 5 दिन या कोई कहता है 15 दिन से ज्यादा आप किसी को कैद तन्हाई में रखो तो उसको टॉर्चर कंसिडर किया जाता है। इमरान खान कैद तन्हाई में 2 महीने से हैं, बुशरा बीबी भी और मेरी बहन 20-20 मिनट के लिए 3 दफ़ा मिली है दोनों को, और साथ एक दफ़ा बुशरा बीबी की बेटी थी। अब आगे ज़ाहिर है वो काजी अनवर साहब और बाकी सवाल थे, लेकिन
جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب سے جب بنی گالہ میں ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ کئی بار ملاقات ہوئی، ایک ملاقات میں عمران خان صاحب سے ایک ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے دوست نے سوال کیا، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے جس میں انہوں نے عمران خان سے کہا کہ آپ کے اوپر اتنا ظاہر ہے دباؤ ہے، اتنی چیزیں ہیں، تو آپ کیسے، اور اتنے سٹریس والی چیزیں ہیں تو آپ کیسے سٹریس کو مینیج کرتے ہیں؟ تو عمران خان نے کہا تھا کہ سٹریس کو مینیج کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، اور ایک ایکسرسائز ہے اور دوسرا نماز ہے۔ تو انہوں نے کہا 2 چیزوں کے ذریعے میں سٹریس کو مینیج کرتا ہوں۔